नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बनर्जी। राहुल जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया धर्मेंद्र। हम आपके साथ बातचीत करें उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर डाल लेते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मैच में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जारी। विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता। प्राग मास्टर्स शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और कोलकाता में ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु एफसी का आईएसएल मैच जारी। तो दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंतिम लीग मैच में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला जारी है और हम आपको बताएं कि ये दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। आज के मैच में जीत हार का मतलब यह है कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी या दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी, ये तय होना है। फिलहाल सीधे चलते हैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम, जहां से मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता विनोद कुमार। विनोद जी, नमस्कार। नमस्कार। What's the update from Dubai Cricket Stadium? New Zealand is currently 122 for 3 after 29 overs, with the required run rate creeping above 6 runs per over. If India can tighten the field and cut off the boundaries, the pressure will surely mount on the Kiwis, making it harder for them to rotate the strike or find the boundaries. Both teams have till now shown incredible energy and sharp fielding, but Kane Williamson, the captain of New Zealand, remains the key figure at the crease, anchoring the chase with a composed. So far it is 59 from 83 balls with 6 boundaries. Earlier in the day, India's first innings batting faltered under New Zealand's disciplined and athletic bowling attack. We could manage only 249 with 9 wicket loss. After being sent into this crucial match with New Zealand winning the toss. The innings got off with a nightmare stuff with Rohit Sharma, Shubham Gill and Virat Kohli back in the pavilion within the power play itself. Matt Henry struck early, and the moment of magic came when Glenn Phillips flew into the right to the point, pulling off a stunning athletic one-handed grab, backing Kohli within 11 runs in his 300th one-day innings. And then came a patient knock by Shreyas Iyer and Akshar Patel, who built a steady partnership but struggled to keep up the scoring rate. Akshar fell while he was trying to hit hard, and then KL Rahul also followed soon after. Then in the last overs, Hardik Pandya injected some much needed firepower, counter-attacking even as wicket tumbled around him. Pandya's fighting spirit at 45 came to an end in the final over, and we could not gather much steam in the final overs. Matt Henry from New Zealand stood tall with 5 wickets. Most of the Indian wickets fell to the catches, thanks to brilliant athletic performance of the Kiwis in the field. In response, India struck early. Hardik Pandya gave a massive breakthrough, dismissing Rachin Ravindra with a well-directed short ball, and Akshar Patel held his nerve to take a brilliant catch. Vinod, good evening. This is Rahul Banerjee from the studio. Okay. Can I just, what do you think? It looks like New Zealand have kind of got stuck in the Indian spin trap, and it's almost turning into a T20 situation for them. At what point do you think they will start to accelerate? Because they seem to be unable to break the shackles that the Indian spinners have imposed on them. Yeah, this is a day and night kind of situation, and they are batting under floodlights, and the ball has turned old. And now now the pitch is supporting the spinners, and India has got an advantage of this track. We have played all our matches here, and we are more familiar with the spinning conditions here, and that means that New Zealand is finding it very difficult currently with this Indian spinning attacks mounting very precise deliveries. And we have got very good ground support also. The ball is turning a bit fast, and it is the seam, and even for the fast bowlers, we are seeing some swinging action now. So New Zealand is finding it a bit difficult to pitch up with asking run rate.
Is Dew likely to be play any sort of role? Yes, dew is actually very important. Now the temperature in Dubai is at the dew setting point, and once this dew phenomenon happens, there will be moisture in the ball, and the ball will start moving unpredictably. So yes, dew is one of the factors. But at this point, what is more important is to break this partnership that Kane Williamson has set with the peers here. Latham is looking good now. They are very well experienced in playing under these conditions. And what we can expect is a breakthrough by either Kuldeep Yadav or Devendra Jadeja to break this partnership between Kane Williamson and Latham. Then we'll have definitely a good chance of getting the match under our belt. Thank you. निगाहें बनाए रखिए आप, और जब सेमीफाइनल मुकाबला होगा तो उसके बारे में भी हम आपसे ढेर सारी बातचीत करेंगे. फिलहाल आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार. ओके, थैंक यू. और अगर हम बात करें तो आज भारतीय बैटिंग काफी मुश्किलों में शुरुआत में दिखाई दी थी, और हम सोच रहे थे कि स्पिनर्स कमाल करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के 30 गेंदबाजों ने परेशान किया भारतीय बल्लेबाजों को. सुनते ही रिपोर्ट. ग्रुप ए से टेबल टॉपर बनने की इस जंग में कीवी तेज गेंदबाजों ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली. कहां तो आशंका थी कि क्वालिटी स्पिन गेंदबाज सेंटनर और ब्रेसवेल भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी की परीक्षा ले सकते हैं, और कहां उनके तेज गेंदबाजों ने नाक में दम कर दिया. कलाई और उंगली के जादूगरों ने नहीं, बल्कि रफ्तार के सौदागरों ने भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ा दी. मैट हेनरी की अगुवाई में तीसरे ओवर से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने विकेट लेने का जो सिलसिला शुरू किया वो अंतिम गेंद तक जारी रहा. धीमी पिच पर विरोधी टीम की चतुराई भरी तेज गेंदबाजी से इन फॉर्म गिल, रोहित और कोहली 30 के स्कोर तक ही पवेलियन लौट गए. टीम मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल का साथ लिया और चौथे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी कर पारी को मंझधार से निकाला. श्रेयस और राहुल के बीच भी 44 रन की अच्छी साझेदारी हुई. भारत के लिए सबसे अधिक 79 रन की पारी खेलने वाले अय्यर का विकेट 172 के स्कोर पर गिरा और फिर टीम संभल न सकी. बड़ी मुश्किल से टीम का स्कोर 249 तक पहुंचा. टूर्नामेंट में सबसे बेहतर स्पिनर माने जा रहे ब्रेसवेल का हाथ खाली रहा, जबकि सेंटनर और रचिन रविंद्र को बड़ी मुश्किल से एक विकेट मिला. दूसरी तरफ मैट हेनरी के फाइपर के साथ तेज गेंदबाजों के कुल 7 विकेट ने ये जता दिया कि आगे के मुकाबले में भारत को न सिर्फ स्पिनर्स के खिलाफ चौकन्ना रहना होगा, बल्कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी खास रणनीति बनानी होगी. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन भारतीय टीम प्रबंधन को सेमीफाइनल के लिए नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा. अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन. भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने परेशान दिखे, तो इस समय न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के सामने काफी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं. और 31 ओवरों का खेल हो चुका है, 3 विकेट गिरे हैं, 128 रन ही सिर्फ बने हैं. अभी भी 19 ओवरों में 122 रन की और आवश्यकता है. क्या लगता है राहुल जी, मैच फंसा हुआ है न्यूजीलैंड के लिए? जरूर लग तो वैसे रहा है, क्योंकि 6.5 के आसपास रन रेट पहुंच चुका है. लेकिन अभी आजकल इतनी टीमें इतनी T20 खेलती हैं, T20 क्रिकेट खेला जाता है कि अब देखें, मेरे ख्याल से अब न्यूजीलैंड की टीम अभी ऐसे हिसाब कर रही होगी कि ठीक है, अभी जितने ओवर हैं 19 ओवर बाकी हैं, अभी हम T20 मोड में आ गए. अब हमको पता है कि इतने 122 रन बनाने 19 ओवर में. अभी किसी टाइम अभी यहाँ से अभी 19 ओवर से लेके 10वें ओवर तक वो ऐसे चलाते रहेंगे. मेरे ख्याल से विकेटों को बनाए रखेंगे हाथ में, फिर लास्ट के 5 या 6 ओवर में उन्हें एक्सेलरेशन देखेंगे अगर उनकी विकेटें रही हाथ में. क्योंकि जैसे आपने कहा और जैसे हमने सुना आपके रिपोर्ट में और ग्राउंड से, स्पिनर्स दोनों तरफ से काफी हावी हैं. हालांकि उनके लीड स्पिनर ब्रेसवेल को कोई विकेटें नहीं मिली, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने काफी दबाव बना के रखा हुआ है. तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि विकेटें कितने हाथ में रख पाएंगे. जी, क्रिकेट की एक और खबर. विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीत लिया है. नागपुर में मैच के आज 5वें और अंतिम दिन केरल पर पहली पारी की बढ़त के आधार पर विदर्भ ने ट्रॉफी जीत ली. सुनते ये रिपोर्ट. दोनों टीमों के बीच अंतिम दिन मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ, लेकिन रणजी ट्रॉफी के नियमों के आधार पर विदर्भ ने पहली पारी की बढ़त के आधार पर केरल को मात दी. विदर्भ ने इससे पहले 2017-18 और 2018-19 में खिताब जीता था. चैंपियन विदर्भ ने पहली पारी में 389 रन बनाए थे, लेकिन केरल की टीम 342 रन ही बना सकी. इस तरह विदर्भ ने पहली पारी में 37 रनों की बढ़त हासिल की. दूसरी पारी में अंतिम दिन का खेल खत्म होने तक विदर्भ ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर
375 रन बनाए। इस साल विदर्भ ने 8 मैच में सीधी जीत दर्ज की। वहीं टॉप 10 बल्लेबाजों में उसके 4 बल्लेबाज शामिल रहे। गेंदबाजी में हर्ष दुबे शीर्ष पर रहे। टीम के कप्तान अक्षय वाटकर ने सफलता का श्रेय पूरी टीम को दिया। लास्ट ईयर हम फाइनल मैच हार गए थे, तो फाइनल मैच हारने के बाद हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था मॉनसून में। तो हर एक इंडिविजुअल्स ने खुद के ऊपर काफी मेहनत की थी और कोशिश यही थी कि हर इंडिविजुअल अपना स्किल डेवलप करेगा, फिटनेस डेवलप करेगा। जैसे आप फर्स्ट टॉप 10 बैट्समैन में से 4 बैट्समैन विदर्भ के हैं, तो हर एक इंडिविजुअल ने कंट्रीब्यूट किया है, तब जाके हम जीते। दूसरी तरफ केरल पहली बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन अनुभवी विदर्भ के सामने चैंपियन बनने की उसकी तमन्ना अधूरी रह गई। अपने प्रदर्शन के साथ किस्मत के भरोसे भी फाइनल तक पहुंचा केरल खिताबी मुकाबले में सिर्फ कुछ रनों के अंतर से पहली पारी की बढ़त लेने में सफल नहीं हो सका और यही उसकी हार का कारण बना। खिताब के करीब पहुंचकर चूकने पर ये दर्द उनकी टीम के खिलाड़ियों को शायद जीवन भर सालता रहेगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। और क्रिकेट के बाद बात अब शतरंज की। प्राग मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब वो अपने ही देश के अरविंद चिदम्बरम के साथ शीर्ष पर पहुंच गए। सुनते हैं रिपोर्ट। टूर्नामेंट की शुरुआत में जीत के लिए संघर्ष करते दिखे प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को अपनी सधी हुई चालों के दम पर शिकस्त दी। इस जीत ने उन्हें अपने जूनियर साथी खिलाड़ी अरविंद के साथ टॉप पर पहुंचा दिया है। प्रज्ञानंद का सामना अगले दौर में अरविंद से ही होगा, जिसमें वह सफेद मोहरों से खेलेंगे। इस बाजी से पहले तक एकल बढ़त बनाए रखने वाले अरविंद ने अमेरिका के सैम सैंकलन के साथ ड्रॉ खेला। अंक बंटने के बावजूद वह शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं टॉप सीड चीन की वेई ई ने स्थानीय खिलाड़ी डेविड नवारा को हराया। नीदरलैंड के अनीश गिरी ने लगातार चौथा ड्रॉ खेला। उनकी बाजी तुर्की के गुरेल एडीज के साथ बराबरी पर रही। चेक गणराज्य के ग्रैंड मास्टर एंगुएन थाई देवान ने वियतनाम के कुआंग लेम ली से ड्रॉ खेला। शैंकलन, कीमर, गिरी और ली संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने अन्य बाजीगरों से पूरे 1 अंक की बढ़त बना रखी है। प्रतियोगिता में अभी 5 राउंड शेष हैं और ऐसा लग रहा है कि खिताब की दौड़ भारतीय खिलाड़ियों के बीच रहेगी। चैलेंजर वर्ग में दिव्या देशमुख ने चीन की माकुन से ड्रॉ खेला और अब 4 मुकाबलों के बाद उनके 1.5 अंक हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। तो राहुल जी, ऐसा लग रहा है कि शतरंज जो है पूरी तरह से आकर भारत में सिमट गया है, क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखें तो लगातार सफलता और इस टूर्नामेंट में भी टॉप पर 2 भारतीय खिलाड़ी। नहीं, अब अगर आप थोड़ी सी इतिहास की तरफ नजर दें तो मैनुअल आरोन के टाइम से और उनके आसपास शुरू होकर विश्वनाथन आनंद से गुजरते हुए आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि टीम चैंपियनशिप में हमने डोमिनेट किया। अगर आपको याद होगा जी, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हुआ है हमने। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इतने सालों का फल है, क्योंकि ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ है, ना ही कुछ सालों में हुआ है, ना ही बाय द वे हुआ है जी। ये बहुत ही सीरियस इनपुट अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं जी। उधर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय ईस्ट बंगाल का मुकाबला बेंगलुरु एफसी के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक ईस्ट बंगाल 1-0 से आगे है। दोनों टीमें अब तक आईएसएल में 9 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं और दोनों ने 4-4 मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों के बीच एक मैच ड्रॉ रहा है। और इससे पहले कल कोची के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जमशेदपुर एफसी और केरल ब्लास्टर्स एफसी के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ था। कल 6ठे स्थान पर मौजूद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना 10वें नंबर की टीम चेन्नईयन एफसी से होगा। टेनिस से खबर है, दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारत के यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया। इस जोड़ी ने कल रात फाइनल में फिनलैंड के हैरी होलियोवारा और ब्रिटेन के हेनरी पैटन की जोड़ी को 3-6, 7-6, 10-8 से हराया। डबल्स में एक अच्छा संकेत यूकी भांबरी की तरफ से लगातार मिल रहा है। और अगर हम बात करें क्रिकेट की तो वहां से एक और अच्छी खबर आ रही है राहुल जी। चौथा विकेट गंवा दिया है न्यूजीलैंड की टीम ने 133 के स्कोर पर और रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़कर 6.62 का हो गया है। अब देखिए, यहीं से अब असली खेल अब यहाँ शुरू होगा धर्मेंद्र, कि आखिर के जो 15-16 ओवर बाकी हैं, इनके हाथों में, न्यूजीलैंड के हाथ में 6 विकेटें बाकी हैं और दबाव लगातार हमारे स्पिनर्स ने डाल रखा है। आप क्या चाहेंगे कि भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले या दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले? ऑस्ट्रेलिया। क्यों? क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका टीम है बहुत ही तगड़ी लग रही है। उनकी फील्डिंग बेहतरीन है और सारे बैट्समैन बॉलर सभी फॉर्म में। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो राहुल बनर्जी जी, स्टूडियो में आने के लिए हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।